Okay, Assalamu alaikum. Everyone, today's the topic of discussion is static and dynamic balancing, and this one is our 12th experiment we have to look at in engineering mechanics lab, and this is the last experiment we have to go through. And about the balancing, static and dynamic balancing, first of all, you should know everything that rotates need to be balanced. Okay, so for example, if I have this rotating shaft, and on that's an axle wheel. So if its mass is distributed uniformly, then it would rotate smoothly. यानी कोई आपके पास वाइब्रेशन नहीं होगी, ये अपने एक्सिस के गिर्द क्या होगा, रोटेट करेगा. इस तरह की जो बैलेंसिंग होती है वो खास तौर पे इम्पोर्टेंट होती है व्हाइल इफ द बॉडी इज मूविंग. सपोज अब इसमें क्या किया कि अगर हम एक मैस ऐड कर दें, एक एक्स्ट्रा मैस ऐड कर दें, दैट्स एन अनबैलेंस्ड मैस, सो व्हाट वुड हैपन एक्चुअली? व्हाट डू यू थिंक, मुनीम? एनीवन? यस सर। अगर यहाँ पे एक एक्स्ट्रा मैस अप्लाई कर दूं, व्हाट वुड हैपन देन? सर वो उसको अनबैलेंस करेगा। वो अनबैलेंस करेगा. सो व्हाट्स एक्चुअली going on here? We know that if I can distribute this wheel into small masses, okay, I can call this one A and this one B and other one C, D, S. So we know that if a body is moving, then an external force, a centrifugal force, is acting on it. So on this particle A, there is a centrifugal force Fc that is in perpendicular to this axis. So if there is an other particle here, so there is another centrifugal force here, and these two forces would cancel each other. So the net force would be zero. But in this case, so if I apply an extra mass, an extra unbalanced mass, what would happen? So the centrifugal force in this direction would be more as compared to the other direction. So there would there will be an additional force acting on this shaft perpendicular to the axis. So this force would try to bend the shaft. So this force would apply a force. So this shaft would exert additional force or the stresses on these bearings that are at the ends. So basically what happens actually, the unbalanced mass tries to bend the shaft and applies extra load on the bearings, so the bearing would be wear out soon. So for the static balancing, what we static balancing, for the static balancing, what we say is that the center of gravity of an object is the axis of rotation. For example, if in case of this one, when there is no unbalanced mass, so the center of gravity of this wheel would lie at this point. So, but if I apply an additional mass, so what would happen? Its weight would be, sorry, center of gravity would move a bit downward. So center of gravity would not be on the axis of rotation or the axis of the shaft. So there are two axes then. The one is center of mass as shown here, and the other one is axis of rotation. So if someone like try to move it, so what would happen? It won't rotate freely as like कि अगर आप इस पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये ऐसा नहीं होगा कि कहीं पे भी रुक जाए. इसकी ये वाला जहाँ पे एक अनबैलेंस मैस की मौजूदगी की वजह से क्या होगा कि हर बार जब आप इसको बाय हैंड रोटेट करेंगे तो ये जो अनबैलेंस मैस है, चूंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे अप्लाई करता है, तो ये चीज़ हमेशा क्या आएगी, नीचे आएगी. इस चीज़ को मैं यहाँ पे स्टॉप नहीं कर सकता. आई एम ट्राइंग टू से कि अगर इसको मैं रोटेट करूँ और यहाँ पे स्टॉप करने की कोशिश करूँ, ये स्टॉप नहीं करेगा. ड्यू टू द ग्रेविटी ये वापस इस पोजीशन पे मूव करेगा. और अगर इसको मैं यहाँ पे भी स्टॉप करने की कोशिश करूँ, तब भी क्या करेगा, डाउनवर्ड मूव करने की कोशिश करेगा. यानी इस केस में इसके पास टेंडेंसी है मूव करने की
ड्यू टू द ग्रेविटी। तो जब इस तरह की अनबैलेंसिंग हो कि बॉडी जो है आप उसको बाय हैंड रोटेट करें और रोटेट करने के बाद क्या हो, वो अंडर द ऑप्शन एक्शन ऑफ ग्रेविटी क्या करते हैं, मूव करते हैं किसी वजह से। तो इस तरह की जो बैलेंसिंग होती है दैट इज कॉल्ड स्टैटिक अनबैलेंसिंग। एज कम्पेयर टू दिस वन, इसमें आप क्या करें, अगर आप उसे रोटेट करते हैं तो क्या होगा कि वो कहीं पे भी आप इसको क्या कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। एंड देयर इज, क्योंकि ग्रेविटी जो है वो ओवरऑल सब पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो स्टैटिक बैलेंसिंग की क्या कंडीशन है कि आपके पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन, शाफ्ट के एक्सिस पर हो, और दूसरा उसकी बॉडी की कोई टेंडेंसी ना हो, नो टेंडेंसी टू रोटेट ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो तो हम कहते हैं कि बॉडी क्या है, स्टैटिकली बैलेंस है। फॉर दिस For the second one, the dynamic balancing, of course, both conditions should be satisfied. The first one is resultant of all centrifugal forces must be equal to zero, or the sum of the moments should be equal to zero. To explain that, what we can see here, for example, okay, this one is a single mass, okay. This one is a shaft, and there is an additional mass A that is attached to this shaft at a distance r1. ये आपके पास शाफ्ट है और इससे डिस्टेंस r1 पे एक अनबैलेंस मैस r1 जो है वो अटैच है। अब जब ये शाफ्ट रोटेट होगी, when this shaft rotates, तो ये जो है, ये लोड A जो है एक्स्ट्रा उस पर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, एक अनबैलेंस फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। इट सप्लाइंग एडिशनल स्ट्रेसेस ऑन द शाफ्ट एज वेल एज ऑन द बेरिंग। तो इसकी वजह से क्या होगा, बेरिंग जो है वो जल्दी खत्म हो जाएंगे, उनकी लाइफ जो है वो शॉर्ट हो जाएगी, शॉर्ट लाइफ का स्पैन शॉर्ट हो जाएगा। तो अब अगर इसको बैलेंस करना है तो यानी एक एक्स्ट्रा सेंटीपिटल फोर्स है जो इस डायरेक्शन में प्रोवाइड कर रहा है, दैट कैन बी गिवन बाय दिस फार्मूला, Fc1 is equal to mass of this one multiply by R1 into omega squared. This one is the relation of the centripetal force. As you know that Fc is equal to mv square over R, and we know that v is equal to R omega. So if I apply this one here, R omega R square, and then R1 cancel out, so I'll get m1 R1 omega square. So this one is the additional force on this one, so that is trying to unbalance this one, this shaft. Okay, that's basically unbalancing of a single due to a single mass, single imbalance mass. Okay. इसको जो है ना कैटर करना एक्चुअली बहुत ज़रूरी है कि आपके पास जो इम्बैलेंस है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो आपके मेंबर्स के अंदर क्या प्रोड्यूस करता है, स्ट्रेस प्रोड्यूस करता है। इसकी अगर हम एग्जांपल्स देखें तो सबसे पहले देखें कि इंडस्ट्री में जब यहाँ पे तो एक छोटा सा मैस है, लेकिन जब एक लार्ज मैस हो लाइक व्हील्स हो या प्रोपेलर्स हो और वो हाई स्पीड पे मूव कर रहे हो, 3000 आरपीएम इज द ऑप्टिमम स्पीड फॉर मोस्ट ऑफ द इम्पेलर्स। इफ यू सी the manufacturer catalog, most of the propellers rate at 2800 rpm or 3400 rpm. So at this speed when an impeller rotates, तो ये जो छोटी सी भी आपकी जो इम्बैलेंस होती है बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करती है और बहुत ज़्यादा नॉइस प्रोड्यूस करती है। तो इसके लिए इंडस्ट्री में जितना भी इक्विपमेंट यूज़ होता है दैट शुड बी परफेक्टली बैलेंस्ड। अगर क्या हो जाए किसी वजह से एक जगह से ज़्यादा वेयर एंड टेयर हो जाता है तो उस वजह से वहाँ पे क्या क्रिएट होता है, लैक ऑफ मैस की वजह से भी इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। तो उसको बैलेंस करना ज़रूरी है। लाइक इफ यू कैन सी द वर्कर इन दिस वन, व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू कि किसी वजह से ये इम्पेलर जो है ना यूज़ होके क्या हो गया, इम्बैलेंस हो गया। सो द वर्कर इज उसने उसको क्या किया, एक इम्बैलेंस मशीन के ऊपर माउंट किया एंड देन ही इज ट्राइंग टू बैलेंस दिस व्हील। Similarly, there's another worker. You can see here there's a print roller, and it usually weighs around 2 ton or 2 to 3 ton. So if this huge mass rotates and if it's not properly balanced, what would happen? It would cause noise and the vibration. So ultimately, the printing would not be smooth. So everything basically that rotates, it should be perfectly balanced. So we have to observe this phenomena of unbalancing in this experiment actually. So I have this equipment here, that's from Tech Equipment, similar equipment we have in our lab.
So you can see there's a dome here that's basically guard, and you can see the four masses in there. So there are four masses actually, one, two, three, four, and there is a scale at the bottom end. So what we have to do, like we can take one mass as an imbalanced mass. So I'll choose this one as an imbalanced mass. So due to this one, this shaft would be unbalanced. So when it would rotate, it would cause vibrations and the noise that can be observed by rotating this shaft at 200 or more than 200 RPM. But in unbalanced condition, it's not appropriate to rotate the shaft at high speeds because that would cause the failure of the bearings at the ends. So we will not rotate the shaft more than 200 RPM. So that's why we will observe the this vibrations or the noise at low speed or lower than 200 RPM. So I can take this one as an imbalanced mass. Suppose so one mass in the plane that is causing the imbalance to this shaft. So there are two methods. If I have one imbalance mass, there are two methods to balance that. The first one is balancing balancing a single mass with another one. Okay, for example, this one, there is a mass that is, we can call that uh, an unbalanced mass. So that mass can be balanced by an mass B in the same plane at a distance R2. For example, if this one, on this one, this is the top view at the right side. So this one is the shaft at the center, and this one is the imbalanced mass. So the centrifugal force at this end would be equal to m1 r1 omega square, and the balancing mass at a distance r2 m2 would cause a force of fc2 is equal to m2 r2 omega square. So for perfect balancing, what would happen actually, these two forces should cancel each other. So if I place this one, these two equal, fc1 is equal to fc2. So this omega square cancel out. So I will get m1 r1 equal to m2 r2. So this is the condition to balance a single mass with another mass in the same plane. Like these twos are in the same plane, so these would cancel out the moments as well. So that's why m1 r1 should be equal to m2 r2. That's the condition. Okay, but in most of the cases, it's not possible to apply a mass in the same plane like we have in our experiment. Like I cannot attach another mass at this site, or due to some other reasons, we can't apply a mass in the same plane. So what we can do actually, we can balance this unbalanced mass by two balancing masses m1 and m2 in two different planes. So this is the top view. This one is acting at the center of the shaft. We can assume that, and the distance of m1, the balancing mass m1 from this unbalanced mass is l1, and the distance of this balancing mass m2 from this unbalanced mass is l2, and the total distance between the balancing mass is the l1. So for the static equilibrium, both all the centrifugal force should be balanced. So I can call this mass m1 fc1. So this one would be fc1, and this one would be fc2. So using the same formula, fc is equal to mr omega square. So I will get mr omega square here, m1 r1 omega square here, m2 r2 omega square. So omega squares cancel. So I'll get mr m1 r1 plus m2 r2. So in this condition, if this condition satisfies, then this shaft is statically balanced because all the centrifugal force, the sum of the centrifugal forces is zero. So Fc is equal to, but even if this condition satisfies, there is a possibility of a net moment
on the bearings. So the moment should be balanced as well. So I can take the moment about this point, taking the moment at this point equal to 0. So I'll get FC1 multiplied by L1, meaning anti-clockwise should be equal to clockwise. So this one FC multiplied by L2. So FC1 multiplied by this whole distance, capital small l, and FC2 multiplied by this L2. This is the first condition. About this point, the moment at this point it should be equal to 0, and we can also take the moment at this point and set it to 0. So if I take the moment at point Q, so what I'll get, FC2 force clockwise, FC2 multiplied by L should be equal to FC multiplied by L1. These are the conditions for the complete equilibrium of the rotating body. If the first condition satisfied, we say that the body is in static equilibrium. If both conditions are satisfied, we say that the body is dynamically balanced. A dynamically balanced body is automatically, we can say that that's statically balanced as well. But a statically balanced object is not necessarily should be dynamically balanced. So this is the principle here. Any question so far? No, sir. सर क्वेश्चन है कि सर इसमें वेट ऊपर की तरफ एक्ट कैसे कर रहा है? ऊपर की तरफ इट्स नॉट लाइक कि ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है एक्चुअली। ये इस तरफ देखें ना कि सपोज ये इस शाफ्ट के साथ अटैच है, ठीक है, ये एक वेट इस तरफ है और इसके 180 डिग्री बैक पे दो वेट्स इस तरफ है एक्चुअली। तो वो ऊपर की तरफ नहीं है, वो टॉप व्यू है एक्चुअली। मतलब ये शाफ्ट है आपके पास, दिस वन इज द शाफ्ट, और ये इस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है। एक इम्बैलेंस मैस इस तरफ है और दो बैलेंसिंग मैस राइट एट द 180 डिग्री है। इज दैट क्लियर? यस सर। ओके, तो यहाँ तक आपको पता चल गया कि बेसिकली कोई भी चीज़ अगर इम्बैलेंस हो तो उसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। इसके देयर आर सम डेंजर्स ऑफ अनबैलेंस, इंक्रीज लोड ऑन बेयरिंग्स एंड स्ट्रेसेस इन वेरियस मेंबर्स, अनप्लेजेंट नॉइस, वाइब्रेशंस। मेजर जो आपके पास साइड इफेक्ट है वो ये वाइब्रेशंस है, क्योंकि जिस मशीनरी में ज़्यादा वाइब्रेशंस पैदा हो उसकी लाइफ स्पैन जो है वो शॉर्ट हो जाता है। शॉर्ट डिफ्लेक्शन, जब शॉर्ट डिफ्लेक्ट हो जाएगी तो कुछ अर्से के बाद वो यूजेबल नहीं रहेगी, वी हैव टू रिप्लेस दैट। एंड देयर इज एन अदर फेलियर लाइक मैकेनिकल सील फेलियर्स इन पंप्स। पंप्स के अंदर जो सील्स होंगी वो फेल्स हो जाएंगी। एक्चुअली इफ़ यू हैव सीन एवर सीन अ पंप कि इम्पेलर बेसिकली एक हाउसिंग के अंदर होता है और हाउसिंग के एंड पे जो सपोर्ट इस शाफ्ट को जो है एक सीलिंग ग्लैंड्स होती हैं एक्चुअली, तो वो क्या करती हैं, शाफ्ट को होल्ड करती हैं। तो वो सील जो है उसका काम क्या होता है, लीकेज को प्रिवेंट करना। तो वो सील जो है वो इसके इम्बैलेंस होने की वजह से, क्योंकि फोर्सेस इंक्रीज हो जाती हैं, शाफ्ट एक डायरेक्शन में ज़्यादा फोर्स अप्लाई करती है तो वो सील डैमेज हो जाती है। इसकी वजह से उस सील को क्या करना पड़ता है, रिप्लेस करना पड़ता है। दिस इज अबाउट सो फार we have gone through. Any question you can ask. I'll upload the demo by the evening. Any question? No, sir. Okay. हसन आरिफ, आप बताएं हमने क्या किया आज। एक्सपेरिमेंट का टाइटल क्या था और इसमें हमने करना है क्या एक्चुअली? Yes, sir. Question repeat कर दे sir. Can you explain what we have done today, and in the experiment number 12 what we have to observe actually? Sir, हमने बैलेंसिंग के बारे में पढ़ा सर, स्टैटिक एंड डायनामिक सर। So how can we say that a shaft is statically balanced or not? How can we can observe in daily life?
सर Anyone वी सर ट्राई टू रोटेट इट सर। सर उससे पता हम्म, लगता है सर कि उसकी मैसेज सर कहीं अनबैलेंस तो नहीं होगी सर। कैसे पता चलेगा? उसको रोटेट किया आपने फिर? सर वाइब्रेशन की वजह से सर। ओके। सुहेब आप बताएं। जी सर। आप बताएं हमें कैसे पता चलेगा सर हम कि उसकी चीज को रोटेट करते हैं तो हम्म उसका सर हम उसका सेंटर ऑफ रोटेशन जो लेते हैं स्टैटिक्स में वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी लेते हैं उसका। और हम्म अगर वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे अपने जिस पॉइंट पे उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोएस्ट होता है उस पॉइंट पे वो बैलेंस होता है हम्म जहाँ पे उसकी मजीद रोटेशन नहीं होती। अगर उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं ऊपर हो तो वो मजीद रोटेट करके अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी को अपनी मेन पोजीशन पे लाने की कोशिश करता है। इससे में स्टैटिक्स बैलेंस का पता चलता है। Actually, we rotate it, or every time if it comes to, if the same points come down, it means it's not statically balanced. क्योंकि statically balanced का मतलब है वो under the action of gravity की वजह से उसका influence नहीं होगा sort of, कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर वेट ज़्यादा हो तो क्या होगा, हर बार उस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी ज़्यादा होगी तो वही साइड जो है वो बॉटम पे आएगी। तो एक्चुअली अगर इस तरह का सीन हो, यानी आप उस जिस जिस शाफ्ट को आप चेक कर रहे हैं, जिस व्हील को आप चेक कर रहे हैं, उस पर एक पॉइंट लगा लें और उसको फिर आप रोटेट करवाएं। अगर हर बार वो पॉइंट सेम जगह पे आता है, इसका मतलब है आपकी जो शाफ्ट है वो स्टैटिकली अनबैलेंस्ड है। और फॉर द डायनामिक बैलेंसिंग वी हैव टू चेक द सम ऑफ द मूवमेंट्स एज वेल। तो आपने मूवमेंट्स चेक करने हैं प्लेन में, किसी भी पॉइंट पे उसके मूवमेंट्स क्या होने चाहिए। The sum of the moment should be zero. If this condition satisfies as well, we say that the body is in dynamic equilibrium. So both static and dynamic equilibrium must be achieved for the complete or for the smooth rotation of the shaft. Is that clear to everyone? सर डायनामिक इक्विलिब्रियम के अंदर हम मोमेंट्स बैलेंस Yes. करके चेक करते हैं, तो स्टैटिक में क्या करते हैं सर? लाइक स्टैटिक की कंडीशन क्या है सर? स्टैटिक की कंडीशन सिर्फ इतनी है कि आपके पास जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस एक्ट कर रही हैं ड्यू टू द अनबैलेंस्ड मास, और ड्यू टू द लाइक यू से, कि जैसे यहाँ पे है कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही है रोटेटिंग ऑब्जेक्ट पे वो बैलेंस्ड हो, यानी तमाम सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस का जो सम है वो ज़ीरो हो। लाइक अगर यहाँ पे है, अब इस पे इस व्हील ये पहले व्हील यूनिफॉर्मली जो है ना इसका वेट डिस्ट्रीब्यूटेड था, लेकिन इस अनबैलेंस की वजह से अब इस एंड पे चूंकि मैस ज़्यादा हो गया तो इस एंड पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी ज़्यादा हो गई। तो इस वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो द सम ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज नॉट जीरो व्हेन वी रोटेट इट। तो ये जो है, ये कंडीशन जो है वो स्टैटिकली अनबैलेंसिंग की कंडीशन है कि आपके पास सम ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जीरो नहीं है। और उसको मैंने चेक करने का तरीका क्या बताया कि आप उस शाफ्ट को क्या करें, सिंपली रोटेट करें। अगर शाफ्ट को रोटेट करने पे हर बार सेम पॉइंट एक ही जगह पे आता है, यानी अगर मैं इसको भी मार्क कर लेता हूँ और इसके बाद इस शाफ्ट को रोटेट करवाता हूँ, एक 360 डिग्री रोटेट करवाने के बाद छोड़ देता हूँ मैं, और जब ये रेस्ट पे आती है तो सेम ए पॉइंट इसी जगह पे आ जाता है, इसका मतलब है शाफ्ट स्टैटिकली बैलेंस्ड नहीं है। और इवन इफ स्टैटिक कंडीशन इज सेटिस्फाइड, इट्स नॉट नेसेसरीली कि बॉडी जो है वो कंप्लीटली बैलेंस्ड हो। जैसे आपके पास इक्विलिब्रियम में दो कंडीशन होती हैं, पहला सम ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू जीरो, सम ऑफ मोमेंट्स इज इक्वल टू जीरो। सेम इज हियर, लाइक यू कैन सी देयर कि अगर यहाँ पे मेरे पास mass m1 है, there is a unbalanced mass m, and this there are two balancing mass m1 and m2. So what actually what is going on? So this one is applying a force Fc is equal to m1 mr omega square. This one is applying force mr omega square, and this one is applying force mr omega square. So if the sum of these two forces is equal to this mr Fc mr omega square, so we can say that the body is statically balanced. But still, if the static is statically balanced, but if this point is away from this point, so you can say that it's somehow far away from this L1 position. So if I take the moment about this one, and this
anti-clockwise movement. This clockwise movement is not equal to this anti-clockwise movement, so there would be a net couple acting on the shaft, or there would be a net movement acting on the shaft. So that would also produce the vibration in the shaft. Is that clear? Yes, sir. It's clear, sir. Okay, so for the body to be in complete equilibrium, both static and dynamic, both these two conditions should be met. The first condition is the sum of the centrifugal forces must be equal to 0, and the sum of movement about any point in the plane should be equal to 0. So if these two conditions are satisfied, we say that the body is statically and dynamically balanced. If a body is dynamically balanced, अंडरस्टूड है कि वो बॉडी क्या स्टैटिकली बैलेंस्ड भी है, लेकिन अगर एक बॉडी स्टैटिकली बैलेंस्ड है तो इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि वो डायनामिकली बैलेंस्ड भी है. द सम ऑफ मूवमेंट्स मस्ट बी 0. एक्सक्यूज मी सर. जी जी सर वो जो आपने वो पॉइंट वाली बात जो बताई थी वो जरा इट्स स्टिल कंफ्यूजिंग कि वो एक ही पॉइंट पे मतलब वापस आने से ये कैसे शो कर रहा है कि स्टैटिकली अनबैलेंस्ड है. इसकी वो फिजिकली इंटरप्रिटेशन समझ नहीं आई मुझे. मुझे नहीं समझ आई आपने क्या कहा, क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा. सर वो जो आपने कहा था कि एक पॉइंट अगर हम मार्क कर लें और वो एक ही पॉइंट पे वापस आए आफ्टर रोटेशन, तो दिस शोज दैट. अच्छा ठीक है, देखिए मेरी बात सुनिए. देखिए जब मैंने इसको रोटेट किया ना, आपने एक सिंपल आपने एक शाफ्ट ली, ठीक है, उसके ऊपर एक व्हील माउंटेड है लाइक वी हैड इन आवर लैब. आपने अपनी लैब में देखा था जिसपे आपने एक्सपेरिमेंट नंबर प्रोबेबली यू हैव कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट नंबर 6. ओके, बेरिंग वाला एक्सपेरिमेंट नंबर 6 आई थिंक, कि यहाँ पे आपके पास 2 बेरिंग्स हैं, ठीक है. अब मुझे आप बताएं कि अगर मैं इसको रोटेट करता हूँ तो क्या कंडीशन होगी, ये कहाँ पे जाके स्टॉप करेगी. यानी अगर इसको मैंने बस एक पुश किया थोड़ा सा फ्लाई व्हील को, उसके बाद इसे मैंने छोड़ दिया, तो अब ये क्या है, अनबैलेंस्ड कंडीशन में है, ठीक है, लाइक यू कैन सी हियर. तो अगर मैंने अब ये अनबैलेंस कंडीशन में है, तो उसके बाद आपने इसे रोटेट करके छोड़ दिया, तो ये कहाँ पे रुकेगा. जी सर जब अनबैलेंस मास जो है वो नीचे वाली साइड पे आ जाएगा तो रुक जाएगा सर. हाँ बिल्कुल, मतलब ये रुकेगा इस तरह कि ये वाला पॉइंट हमेशा इसी जगह आएगा ना जब आप इसे रोटेट करेंगे, क्योंकि इस पॉइंट पे इसका वेट ज़्यादा है, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड हो गया है पहले की निस्बत, तो इसने इसी पॉइंट पे रुकना है, राइट. अब जब ये हमेशा इसी पॉइंट पे रुकेगा तो इस पे अगर कोई पॉइंट है तो वो भी उसी जगह पे आ जाएगा, ठीक है. यानी आपको नहीं पता, सपोज आपको नहीं पता कि शाफ्ट कहाँ किस पॉइंट से इनबैलेंस्ड है, ठीक है. तो सपोज यहाँ पे इम्बैलेंस है, लेकिन आपको नहीं पता ना, आप शाफ्ट को रोटेट करें उस पर एक पॉइंट मार्क करके, तो अगर हर बार वो पॉइंट उसी जगह पे आए जहाँ पे वो पहले था, तो इसका मतलब शाफ्ट जो है वो स्टैटिकली अनबैलेंस्ड है. इज दैट क्लियर? यस सर. यस सर. Okay, this is for today. If anyone has any other question, he or she can ask. सर सर क्वेश्चन है कि सर अगर कोई किसी मैथ की वजह से कोई चीज़ इम्बैलेंस्ड है तो हम उसको बैलेंस करने के लिए इसके काउंटर एरिया पे हम वेट रख लेते हैं ताकि वो बैलेंस हो जाए. हाँ, बैलेंसिंग की कई मेथड है. एक तरीका ये है कि आप वहाँ से मैस को रिमूव कर दें, ठीक है, लाइक जैसे कि प्रोपेलर्स में करती हैं, ठीक है, जैसे कि रोलर्स में करती हैं, ठीक है, क्योंकि अब आप पूरे रोलर से मैस रिमूव मतलब उसको एक फिनिशिंग कर देते हैं एक स्पेसिफिक डायमीटर पे, उसका डायमीटर रिड्यूस हो जाती है, यानी आप उस मैस को रिमूव कर सकते हैं. पहला प्रोसीजर ये होता है कि आप इस मैस को रिमूव कर दीजिए. दूसरा प्रोसीजर कि आप एडिशनल वेट्स ऐड करें, जैसे कि वी सी दैट अगर आप गाड़ियों वालों के पास जाएं ना, तो जब वो व्हील बैलेंसिंग करते हैं तो वो क्या करते हैं, एडिशनल वेट ऐड करते हैं. जहाँ पे इनबैलेंसिंग हो रही होती है उसके ऑपोजिट वो क्या कर देते हैं, एक एडिशनल वेट ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं.
both procedures can be done. You can increase the mass or you can decrease the mass. सर ये इस तरह से रोटेशनल वाइब्रेशंस खत्म होंगी, बाकी वाइब्रेशंस तो रहेंगी ना अगर देखें। Like सर मतलब किसी चीज को आप रोटेट कर रहे हैं तो उसकी मतलब जितनी स्पीड हम हमारे पास पहले से थी जो कैलकुलेटेड थी उसकी वजह से अगर वेट ज्यादा ऐड करेंगे तो स्पीड चेंज हो सकती है उसकी। मैं आपकी बात समझा नहीं, लेकिन अगर आप वेट ऐड करते हैं, देखिए दो प्रोसीजर हैं। अगर आपके पास एक इनबैलेंस वेट है, ठीक है, यानी ये है आपने अप्लाई किया, ठीक है। सपोज मैं दोनों वेट्स को इक्वल कर देता हूँ, ठीक है। सपोज दिस वन इज m1 इज 5 ग्राम एंड दिस वन इज 5 ग्राम एंड दीज टू डिस्टेंसेस आर द सेम, r1 एंड r2 इज द सेम। अगर आपके पास ये 5 ग्राम का वेट है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आपके पास इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है, यानी इस पॉइंट पे एक एडिशनल बेंडिंग फोर्स लग रही है, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही है इस शाफ्ट के ऊपर, राइट। तो इफ देयर इज एन एडिशनल फोर्स हियर, so you have to balance this force. For this one I have applied an other mass m2, same mass same radius. So what would happen, these two forces would cancel out, ठीक है। ये फोर्स इस फोर्स से क्या हो गई, कैंसिल आउट हो गई। तो जब यानी आपके पास स्टैटिकली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब अगर मैं इस पॉइंट, किसी भी पॉइंट के ऊपर इसको, सपोज यहाँ पे शाफ्ट के ऊपर एक पॉइंट है, अगर मैं इसके अबाउट इसका मूवमेंट लूँ, तो ये क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज, ये दोनों क्या होंगे, सेम, क्योंकि इनका डिस्टेंस क्या है यहाँ से, सेम है। तो जब आप दोनों कंडीशन, यानी कि आपके पास कोई ऐसी फोर्स रही ही नहीं जो मूवमेंट प्रोड्यूस कर सके या जो बेंडिंग फोर्स प्रोड्यूस कर सके, क्योंकि ये जो फोर्स थी इसको मैंने इस फोर्स से क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। बेंडिंग फोर्स भी कैंसिल आउट होगी, नेट मूवमेंट भी जीरो होगा। अब अपनी शाफ्ट जो है, अपनी नॉर्मल जो उसकी कंडीशन है उसमें वो रोटेट करेगी। ओके सर, थैंक्स, समझ आ गई। Okay. Okay, this one is for today.